बढ़िया बढ़िया ना बढ़िया ना Namaste, Vanakkam, good afternoon. I'm Aarti. On behalf of Suresh Kyamthahar University, we welcome you all to the valedictory ceremony of All India Inter-University Football Tournament 2023. Sports are an integral and necessary part of our life. Sports, whether team-based or individual, are excellent activities for us, providing various benefits other than physical fitness. Participation in sports can help us build self-esteem and confidence, motivate us to excel academically, and help build us our social skills. It can even teach us the ways and benefits of goal setting and practice. This year, I find it my pleasure to address you people who are the minds of today and responsible citizens of tomorrow. With a heavy heart, we see the tournament coming to an end, where some won and some lost, but all learned, where 100% participation was encouraged and each participant got to be the part of the learning process. Now, let's witness the felicitation ceremony. I request our Honorable President Sir, Dr. Arunensu Haldar, to felicitate our Chief Guest for today, Srimati Shakuntala Rawat ji, who is the Cabinet Minister of Industry and Devastan, Government of Rajasthan. I once again request our President Sir, Dr. Arvind Suhadar Sir, to felicitate our Honorable Chairman Sir, Shri Sunil Sharma ji. Now I request Dr. Arun Mathur Sir, Dean, Center of Sports Management, National Hockey Players, to felicitate Dr. Praveen Mangatkar Sir from the Football Association of India. Now I request Dr. Sonia Kaur Bansal Ma'am, the Collegiate Head of Suresh Gyamdar University, to felicitate our Honorable President Sir, Dr. Arunensu Haldar. Now I request Dr. Shruti Tiwari Ma'am, Principal, School of Education, Suresh Gyamdar University, to felicitate Dr. Surat Singh Yotika Sir, who is Secretary General, Minigolf Federation of India. Now I invite our Honorable President, Dr. Arunensu Haldar Sir, for delivering the welcome address.
Now I would invite our Honorable President Sir, Dr. Arunansu Halder Sir, for delivering the welcome address. Honorable Minister of Cabinet, Rajasthan Government, Madam Shakuntala Devi, Honorable Chairman of our Gambier University, Mr. Sunil Sharma ji, Honorable Mr. Suraj ji, who is basically the Mini Golf Association representative, and another person from Football Association, and also the dignitaries from so many states, Football Association, our Register, ProVC, faculties, and everybody who are present in this auditorium. Very good afternoon, and also welcome to this valedictory session. I think we have inaugurated this tournament on 2nd of this month. So almost 4-5 days you have spent in this university in playing this football tournament. We have seen your enthusiasm, your interest on this game, and it was an overwhelming participation from all over India. We are very happy to see that all India is participating in our university. We are really grateful to you. And also, I want to say a few more things regarding our university. Our university always promotes sports. And with the blessings of our Honorable Chairman, we have been introducing newer and newer facilities for the sports. Not only we have normal facilities for the normal sports, but also we are going to have a new swimming pool. And he's very enthusiastic about promoting sports in our university. So we want such facilities in this university more and more, and we are going to prepare it. But we want such tournaments. It's not only All India University tournament, but also it's a national tournament, Asian tournament kind of tournament we want to organize in our university. We are very happy that we have a very good person like Dr. Arun Mathur, who did a lot of work to fulfill this kind of tournament to occur in our university. And also the whole team has worked for it. So I am grateful to all of you who have come all the way to this university for playing football. I am very grateful to the Minister Shakuntala Devi ji for taking his time out from our busy schedule to be present in our valedictory session, to be the chief guest. We are very honored by your presence, Madam. We are also very happy and honored that our chairman is also present here, and he is always behind us for any such kind of activity. I am very happy that we have successfully organized this tournament, and with your help, cooperation and participation, I am sure we are going to organize more and more such tournaments in our university. Sports is one of our key element of our university. We do have sports management courses also. So we do give a lot of interest on sports, not only playing sports but also academics. So this is very open. You can always join our university in the
sports courses also. With this, I want to thank you all once again who are behind the organization. I think you all have enjoyed the stay, enjoyed the ambience of our university, and we invite you again for the next tournament when we are going to organize. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for encouraging us to dream big. Thank you so much for providing such opportunities to us so that we can grow holistically. Now, I would like to invite Dr. Praveen Manvarkar, sir, from the Football Association of India to address the gathering. ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 के पारितोषिक वितरण के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय श्रीमती शकुंतला जी रावत, उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार, मंच पर उपस्थित सुरेश ज्ञानमहल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सम्माननीय सुनील शर्मा सर, सुरेश ज्ञानमहल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट सम्माननीय आनंदू हत्रा सर, इस मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई और मिनी गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल वैसी फुटबॉल की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं खेलने वाले हमारे सीनियर खिलाड़ी सम्माननीय डॉक्टर सूरज सिंह योतिका सर, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के हमारे सहकारी हमारे मित्र आदरणीय अजय सिंह मीना जी, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सम्माननीय आदरणीय एडवोकेट सुधीर मानवटकर जी, विविध राजवंशी यहाँ आज उपस्थित, विशेष रूप से उपस्थित जीटीयू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स सम्माननीय डॉक्टर आकाश गोयल जी, कुमार यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, वैसे विविध विद्यापीठों से आए खेलों के संचालक, विद्यार्थी और मेरे सभी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तकनीकी सहकारी, रेफरी, सुरेश ज्ञानमहल यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारी और विशेष रूप से इस विद्यापीठ के खेल संचालक सम्माननीय डॉक्टर अरुण माथुर सर, आप सभी का मैं फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं बहुत खुश हूं आज यहाँ के कि जो एक उम्मीद थी मुझे और अरुण सर और चेयरमैन साहब से जब मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी, मैं अजय जी थे, तो हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सेप्ट किया कि मैक्सिमम बहुत हो गया 45 से 50 यूनिवर्सिटी की एंट्री आएगी, पर आप सभी लोगों के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस स्पर्धा में पूरे भारतवर्ष से 62 यूनिवर्सिटीज ने अपनी एंट्री दी है और एट प्रेजेंट इस मैदान पे कुछ तकनीकी कारण से कुछ यूनिवर्सिटीज दिया अपने पर 55 यूनिवर्सिटीज जहाँ प्रेजेंट थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की और इसकी बात है और आप सभी का प्यार सहकार ऐसे मिलते रहेगा तो आने वाले अगले साल में मैं आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मिनिमम हम लोग 75 to 100 का एक फिगर पार कर लेंगे। बस चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का प्यार, मोहब्बत, सम्मान ऐसे फुटबॉल के प्रति बना रहे हैं। खेल के बारे में काफी कुछ देखा नहीं, आप बहुत हो चुके। पुनः एक बार मैं सभी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. If football in India is flourishing today, it's because of the sustained efforts of people like you. We are so grateful. Now, I invite Mr. Hemant and Mr. Tushar from the Football Association of India to come on stage for the prize distribution ceremony.
Now I invite our Honorable Chairman Sir, Shri Sunil Sharma Ji to address the gathering. ज्ञान विहार प्रांगण में पधारी हुई मेरी बहन सम्माननीय शकुंतला रावत जी, उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार, मेरा काम बेसिकली कोई बोलना ही है, मुझे समय प्रोफेशन। सम्माननीय डॉक्टर हलदर साहब, प्रेसिडेंट ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, सम्माननीय डॉक्टर प्रवीण, वुडबॉल एसोसिएशन के ट्रेजरर साहब, डॉक्टर सूरज ज्योतिकर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गिलोत्रा, मधुसूदन जी, डिफरेंट प्रोफेसर्स और दूर दराज पूरे देश भर से आए प्यारे बच्चों, पिछले 3 दिन से मैं मंत्रमुग्ध था, मैं बिल्कुल एंचेंटेड था, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य था कि जिस मैदान पे आप खेल रहे थे वो मेरे ऑफिस से दिखता था। मैं इतना मंत्रमुग्ध सा देखता था क्योंकि जब खेल रहे थे, इट वॉज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस टू विटनेस दैट। जब ये प्रोग्राम होने की बात आई तो इस प्रोग्राम के जो सूत्रधार है डॉक्टर अरुण माथुर साहब, वो मुझसे मिले, तो मैंने उनके एक ही बात बोली कि जयपुर की एक परंपरा है और जयपुर की उस परंपरा को मैं कोट करूंगा सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया, कि जब सवाई जयसिंह जयपुर शहर को बसा रहे थे तो उनके जो आर्किटेक्ट है उन्होंने उनसे हमारी खुद की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसने पूछा कि भाई कशो शहर बसाओ चाहो छो। तो सवाई जयसिंह ने जवाब दिया कि मैं अशो शहर बसाओ चाहूं छू कि जो एक बार आ जावे वो जावा की न सोचे। तो मैंने अरुण माथुर जी को यही कहा कि आप एक छोटा सा भारत बसाने आ रहे हैं, मगर आप अगर कर रहे हैं तो ऐसी हॉस्पिटलिटी रखिए, इस ढंग से लोगों को एंटरटेन कीजिए कि जो बच्चे आ जाए उनका वापस जाने का दिल नहीं करे, उन्हें लगे कि हम जयपुर में आ गए। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अरुण माथुर साहब ने अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि डॉक्टर अरुण माथुर वास्तव में बहुत ही कमिटेड है, बहुत ही प्रतिबद्ध है, और मैं मानता हूं किसी भी विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो इसी ढंग के कमिटेड स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं। और उसी का नतीजा था कि एक छोटे से अरसे के अंदर ये दूसरा ऑल इंडिया टूर्नामेंट हम लोगों ने किया। और मुझे कम से कम प्रवीण भाई की शक्ल देख के और सूरज जी की शक्ल देख के इस बात में मैं थोड़ा मुतमईन महसूस करता हूं, मैं आश्वस्त महसूस करता हूं कि शायद अरुण माथुर उस परीक्षा में खरे उतरे हैं, ज्ञान विहार उस परीक्षा में खरा उतरा है। और मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि खेलों के लिए अभी पिछले 3 दिन पहले एक सज्जन मेरे पास आए थे और उनका यह कहना था आप इतने स्पोर्ट्स क्यों कराते हैं। तो बच्चों में एक बात कह देना चाहता हूं आपसे कि व्हाई वी आर सो मच कमिटेड फॉर स्पोर्ट्स, और उसका रीजन है कि देखिए स्पोर्ट्स एक वो चीज है जो आप एक माता क्रिएट कर देता है, और वो माता है अंतिम क्षण तक प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बना देने का संघर्ष करता माता। ये जो संघर्ष का माता है, कौन सा माता कि लास्ट ओवर के अंदर अंतिम बॉल पर भी छक्का मार देने का दम ये स्पोर्ट्स पैदा करता है। और यकीन मानिए आपके भविष्य की संरचना है उसके अंदर अगर ये पर्सपेक्टिव आपके अंदर आ गया, अगर ये भावना आपने आ गई कि अंतिम क्षण तक लड़ूंगा और अंतिम क्षण तक लड़कर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल
लर्निंग होती है। आई थिंक दैट यू मस्ट हैव लर्न दिस थिंग इन वेरी मेटिकुलस मैनर। दूसरी बात, टीम की बात करें, क्योंकि अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है, जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर अच्छी तरह ख्याल रखिएगा, एक इंसान कुछ भी बड़ा चमत्कार नहीं करता जब तक कि हमारा एक सिम्बायोसिस ऑफ एफर्ट नहीं हो, एक और एक 11 हो जाते हैं। और ये टीम स्पिरिट हमें सिखाती है। तो मैं मानता हूं आपने इस चीज को समझा होगा, टू वर्क इन ए टीम। इन दो बातों को आपने समझा होगा। तीसरी बात, आज का जो दिन है वो हनुमान जयंती का दिन। हनुमान जयंती के दिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें हनुमान जी की पर्सनैलिटी से कुछ बात सीखनी होनी चाहिए। क्योंकि सामान्यतया जब एक यूथ की बात करते हैं तो यूथ के अंदर हनुमान जी वाली बहुत सारी इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें। और वो सबसे पहली जो बात है वो है कि हर इंसान में एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती है, हर इंसान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है। मगर सबसे बड़ी बात है, हम उस पावर को समझ नहीं पाते, हम उस पावर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब हमें एग्जाम्पल मिल जाता है, जब हमें इंस्पायर मिल जाता है, जब एक मोटिवेटर मिल जाता है, तो हमें से एक हनुमान निकल के आता है। तो मैं आपको भी ये बात कहना चाहता हूँ इस ऑकेजन के ऊपर कि आप सबके अंदर अदृश्य शक्ति है, आप सबके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि अब उस पावर को अच्छी तरह रियलाइज कीजिएगा। उस पावर को रियलाइज अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए भविष्य आपका है, भविष्य आपकी मुट्ठी में है। तो दिस इज पावर। इस पावर को इस पावर को अगर हमारा युवा समझ लेता है तो आप पक्की मान लीजिएगा, वो जो सपना हमारे पूर्वों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा कि भारत विश्व के अंदर एक सबसे ऊपर वाले दर्जे के मुल्क के अंदर हो, और उसके अंदर हम सबका एक कंट्रीब्यूशन, आप सबका एक कंट्रीब्यूशन, बट वो तभी संभव है जबकि आपको अपनी ताकत को समझना पड़ेगा, आपको अपनी पोटेंशियल्स को समझना पड़ेगा। और यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जो मैनेजमेंट को पढ़ रहे होंगे उन लोगों ने मैस्लो थ्योरी को पढ़ा होगा, उस पिरामिड को पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ी जो ताकत हम लोगों की है वो हम अपनी ताकत को पहचाने, अपनी पोटेंशियल को पहचाने और अपना 100% दें। जब आप 100% देने लगते हैं तो फिर आपके अंदर से अब्राहम लिंकन निकलता है। जब आप 100% देने लगते हैं तो आप में से गांधी निकलता है। मैं मानता हूं ये गांधी की भूमि है, एक पवित्र भूमि है। हम अपनी क्षमताओं को समझें और अपने आप को निछावर करें देश के लिए, समाज के लिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हालांकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, मगर क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी देश का भविष्य है। दो चीजों से प्लीज बचिएगा, और दो चीजें हैं, जाति का जो एक फेमिनिस्टिक पूरी समाज में आ रहा है उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, और दूसरा धार्मिक जो कट्टरता है, मैं चाहूंगा उसका भी हम संकल्प लें। एक यूथ वो है जो साइंटिफिक तो आप मैं चाहता हूं आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, आपके अंदर एक वैज्ञानिक अवधारणा हो, सच और गलत को पहचानने की एक तर्कना शक्ति आपके अंदर उदित हो। आप एक महान भारत के आगे आने वाले, क्योंकि सारा भविष्य आपके कांधों पर है, और ये तभी संभव है जब हम रिलीजियस बिगेटरी से दूर हैं, जब हम कास्ट वेनम से दूर है, और सबसे बड़ी बात है हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। और अच्छी तरह समझ लीजिएगा, पढ़ा लिखा इंसान कौन है? पढ़ा लिखा इंसान वो है जिसकी आंख के अंदर दूसरे के लिए आंसू हो, और जब आंसू हो तो उस टाइम ये नहीं होना चाहिए मेरे जात वाले लोगों के लिए आंसू निकलेगा, मेरे धर्म वाले लोगों के लिए आंसू निकलेगा। हर इंसान को आपके आ जाती है, ये जब संवेदना आपके अंदर आ जाती है तो आप पक्का मान लीजिएगा फिर आप एक पढ़ा लिखा एक इंसान पैदा हो जाता है। और जो सबसे पहली जो सेंसिटिविटी है वो आपके पेरेंट्स के लिए। तो प्लीज बी लॉयल फॉर योर पेरेंट्स। आपके अगर पेरेंट्स के लिए आप लॉयल नहीं है तो ये गेम खेलना, आपका कुछ भी उपलब्धि हासिल होना एक बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जो सबसे पहली बात है, क्योंकि अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। आप अच्छे डायरेक्ट, आप अच्छे इंजीनियर बने नहीं बने, आप अच्छे डॉक्टर बने नहीं बने, अच्छे ब्यूरोक्रेट बने नहीं बने, पर हम अच्छे इंसान बने। और हमारे इंसान होने की जो सबसे पहली पहचान है वह है कि हम अपने पेरेंट्स के लॉयल हों, हम अपनी धरती के लिए लॉयल हों, देश के लिए लॉयल हों, समाज के लिए लॉयल हों, और अल्टीमेटली एक बहुत बेहतर दुनिया, एक ऐसी दुनिया जैसा हमको हमारे पुरखों ने दी है, उससे बेहतर दुनिया हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाए। यही हमारी सबसे बड़ी
Vivekananda Proud. Now, I invite our esteemed chief guest of today, Srimati Shakuntala Rao-ji, who is the Cabinet Minister, Industry and Devasthan, Government of Rajasthan, to address the gathering. All India Inter-University Football Men and Women टूर्नामेंट 2023 क्लोजिंग सेरेमनी पर उपस्थित मंच पर चेयरमैन साहब सुनील शर्मा जी, मैंने देखा सुनील जी को ये तो टीवी पे और बोलते ही रहते हैं, तो आज पता नहीं क्या बोलेंगे। सम्माननीय डॉक्टर प्रवीण जी, वीसी डॉक्टर हालत जी, सूरज ज्योतिकर जी, डॉक्टर विजय सिंह जी और अरुण जी जो छोटे भाई हैं, जिनमें कि कुछ ना कुछ नया नया करने का जज्बा रहता है। मेरे को भी नए नए आइडियाज वैसे देते रहते हैं, तो आपके यूनिवर्सिटी में तो ज्यादा देते हैं। और जो सामने उपस्थित हैं उनके लिए मैं 2 लाइन मैंने अभी बैठे बैठे लिखी थी। जहां पर चांद तारे चमकते दिखते हैं उसे नीला आसमां कहते हैं। जहां पर चांद तारे चमकते दिखते हैं उसे नीला आसमां कहते हैं। जहां पूरे देश की टीमें बैठी हो उसे ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो आप सारे स्टार्स हो, ये तो समझ ही गए होंगे। ये मेरी भावना है आपके लिए। और आज सभी को हनुमान जी का जन्मदिन माना जाता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का तो जन्म और जहां वो समाते हैं वो दिखाया गया है। लेकिन मेरी जितनी नॉलेज है, मुझे हो सकता है कम हो, लेकिन हनुमान जी का नहीं दिखाया गया। राम का इधर से जन्म लेते हैं, इधर से सरयू में चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी को मानते हैं कि आज भी वो यहाँ पर है। हो सकता है आपके बगल में कहीं बैठा हो, दिख नहीं रहा है पर तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे भारत देश की मान्यता है, जैसा कि ग्रंथों में अंकित है। और पूरे देश से जैसा बताया कि 62 टीमें यहाँ पर आई हैं, तो पूरे देश को ला करके एक छत के नीचे खड़ा करने का काम भी किया आपने। आपकी यूनिवर्सिटी, आपके पूरा यूनिवर्सिटी परिवार बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद का पात्र है। पहली बार देखा है कि किसी यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया टीमों को बुलाया हो एक जगह। वैसे तो देखते रहते हैं, लेकिन एक जगह किसी यूनिवर्सिटी ने पर्सनल पूरे देश की टीम को इकट्ठा किया हो। राजस्थान सरकार ने तो खेल के लिए अलग से आउट ऑफ टर्न भी 225 के लगभग नौकरी दी है, और हर सर्विस में 2% कोटा दिया हुआ है राजस्थान सरकार ने। ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो युवाओं के लिए और गेम्स में भी नई जो ग्रामीण ओलंपिक खेल करवाए गए, वो बच्चों के लिए तो करवाए। किसको नौकरी दे रहे हैं? वो आप लोगों को ही तो दे रहे हैं, युवा को ही तो दे रहे हैं। खुद के बच्चे तो नौकरी नहीं करते हैं, पूरे राजस्थान के बच्चे हैं उसमें। ऐसा है, आपकी भावना अलग है। बाकी तो अगर आप एक एक योजना देखेंगे ना राजस्थान सरकार की, 2000 यूनिट तक किसानों को बिजली फ्री है। जीरो बिल आ रहा है, लाखों किसानों का जीरो बिल, 1 रुपया नहीं देना पड़ता। घरेलू बिजली में 50 यूनिट तक फ्री, बच्चियों के लिए ड्रेस फ्री, शिक्षा फ्री लड़कियों के लिए, उड़ान योजना, आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए, और चिरंजीवी योजना।
कहना और बोलना आसान है, अगर किसी के घर में दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना होने पे 12 दिन रिश्तेदार और सब बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उस विधवा औरत को बच्चों को पालने के लिए पेंशन बच्चों की और उसको 10 लाख रुपए देना, 10 लाख थोड़े प्रभाव से किसी की सिफारिश नहीं है, ऑनलाइन उसके खाते में जाते हैं महिला के में। मैंने रोते हुए तड़पते हुए देखा है, जिसके बच्चे की किडनी फेल हो जाए, वो मां रोते हुए हमारे पास कागज लेके आती थी बिल बना के अस्पताल का कि किडनी तो मैं दे दूंगी लेकिन मेरे पास 30-35 लाख रुपए नहीं है। मैडम प्लीज आप हमारी मदद करें, मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे दिलवा दें। एक मां और बाप का दर्द कौन समझ सकता है, लेकिन उसमें भी 25 लाख रुपए का और उससे भी ज्यादा लगे तो भी सरकार, राजस्थान की सरकार वहन करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना लाई और गेम्स को बच्चों हमेशा आप खेल की भावना से ही खेलें, क्योंकि उसमें आपस में कोई वैमनस्यता नहीं हो, आपका प्यार और प्रेम बना रहे। और मैं बच्चों से और मंचा सिंह से थोड़ा सा 1 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। ये ध्यान रखें कि आपकी रगों में जो ये खून दौड़ रहा है, ये आपकी मां का है। ये जो खून दौड़ रहा है वो मां का है। आपकी मां ने 9 महीने आपको अपने खून से सींचा है, अपने लहू से सींचा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी को दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें आप। और अरुण भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मक्खन भी अलवर से चल के आया, मक्खन सिंह गुजर भी, वो भी एक खिलाड़ी है, इसलिए तो उसकी भी खेल के लिए यहाँ खिलाड़ियों के दर्शन करने आया, उसे भी धन्यवाद है। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों के लिए और आप सभी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि आप चाहे सीटी बजाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपना जज्बा नहीं छोड़े। आंधी आए तूफान आए, आंधी आए तूफान आए, धूल उड़े ओले बरसे, सूर्य का प्रकाश कभी कम नहीं होता। खिलाड़ी भी हार कर अपने हौसले की जीत कभी कम नहीं होती, जीत कभी कम नहीं होती। धन्यवाद। जय सिंह। Thank you so much, ma'am. We are all so thrilled, so motivated, and feeling so dedicated at the moment. You're not only a prolific speaker, but you're also a prolific writer, and you are a source of inspiration to all of us. And I would like to mention that March is Self-Harm Awareness Month, and I'm so delighted that ma'am brought this up in her speech, and we're so happy that we have your support. We will not harm ourselves, but we will channelize our inner strength and achieve great heights. Thank you so much. खेल है, हारने का गम मत करो। खेल है, हारने का गम मत करो। फिर खेलो पर हौसला कम मत करो। Now I request Mr. Hemant and Mr. Tushar from the Football Association of India to come on stage and begin with the prize distribution ceremony.
Good afternoon, everyone. Good afternoon. वो वक्त आ गया है. So first of all, I would like to thank Suresh Gyan Vihar University and all the dignitaries over here on the stage who have given us, Hemant sir and Tushar, an opportunity for the prize distribution. So we'll start with the prize distribution. So I request dignitaries, please come forward for the prize distribution. I also thank Football Association of India for giving an opportunity to us. Fairway competitions, men, team event, only team event, okay, right now. So the students, those who are in team, they will only come down. Bronze medal goes to SGBU University. Come on, give a round of applause for them. Suresh Gyan Vihar University. I request the team, men's team, to come. Rakesh, Rajesh Kumar, Kailash Kumar, Ram Sukh, Arvind Kumar, Balveer Singh, Narayan Kumar, and Sitaram Prajapati. Third position. Next, if some students have left for the day because they were having 10 train reservations, so team manager and team coach can come and take the trophies. Third place for men's IGTMS University, Indira Gandhi Arunachal Medical Science University. तालियों की आवाज, आप में वो एनर्जी होनी चाहिए. Silver medal, second prize. RTM University in Nagpur, second prize. Come on, give an applause for them, all of you. Men's fairway, come on, all of you, please come fast. Coach, team manager, and the players. Yeah, coach and manager can come. Please come fast. Players, please walk fast when you're coming. Now the first prize goes to Apex University. Come on, give an applause for them. Players and team manager, please line up fast. Now I hand over the mic to Hemant sir. Next event, fairway competition, teams women's. Third place, OPJS Churu, OPJS University Churu, fairway women's. Apex, come fast. सभी प्लेयर्स से अनुरोध है कि
आपके यूनिवर्सिटी का नाम आने के बाद आप तुरंत स्टेज पे पधारे। फेयरवे टीम्स, थर्ड प्लेस OPJS यूनिवर्सिटी चुरू। Come on, give an applause to them. Next, ब्रॉन्ज मेडल भारतीय विद्यापीठ पुणे, फेयरवे वुमेन्स, भारतीय विद्यापीठ पुणे। Team coach, team manager, please walk fast. भारतीय विद्यापीठ कम फर्स्ट। नेक्स्ट, सेकेंड प्राइज फेयरवे वुमेन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। कम दिस साइड। राजस्थान यूनिवर्सिटी। फेयरवे टीम वुमेन्स चैंपियन इज गोल्डवाला यूनिवर्सिटी। Come on, give an applause for them. ये गालियां आपके लिए भी हैं. I request the coach and team manager to walk fast. Now, we'll go for the prize distribution for stroke men's teams. Stroke men's team event, University of Rajasthan, bronze medal. I request the Rajasthan team to walk fast. Stroke team men's, University of Rajasthan. Third prize goes to University of Patanjali. Come on, give an applause for them. I request the team officials and the players to get down. Give an applause for them. Come on. Third place. University of Patanjali. Requesting the players, team manager. अरे मोबाइल नहीं लगा मजा। And the second prize for stroke match and the team players of Suresh Jam University. And the next medal goes to. Now I hand over the mic to him. Stroke competition team event women's. Third place
चलेगा प्लीज। 4th place I request all the winners to come from the right side and leave from the left side, please. 3rd place Jagannath University, please come team coach and manager। Next 3rd place University of Rajasthan, University of Rajasthan। Second place Suresh Gyan Vihar University, walk first and stroke competition team events। First place goes to RTM Nagpur। I thank Suresh Gyan Vihar University and College Association of India for giving opportunity to Hemant sir and me for the prize distribution. Thank you. Please take a seat. I request the dignitaries. We thank and congratulate all the participants and winners. निश्चित तौर पर हम सभी ने यही सीखा है कि सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन सफलता जरूर मिलती है। Thank you. Now the students can proceed for the refreshment.